السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ کا خیر مقدم ہے روبی چینل کے خصوصی پروگرام نور رمضان میں۔ اس پروگرام کے تحت ختم رمضان تک ہم سپہر 3:30 بجے روبی چینل پر موجود رہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ایک عنوان کا انتخاب کرتے ہوئے اس پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ سبھی واقف ہیں کہ نہ صرف شہر اور ریاست و ملک بلکہ دنیا بھر میں اس وقت لاک ڈاؤن جاری ہے۔ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں رہیں۔ رمضان مبارک کی مناسبت سے خاص کر مسلمانوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں نماز اور دیگر عبادات و اذکار کا اہتمام کریں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حیات طیبہ پر بات ہوگی۔ مولانا اس وقت میرے ساتھ ہیں، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ابتدائیہ کلمات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستو اور بزرگوں، رمضان تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ جہاں رمضان اپنے اندر رحمت، برکت، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کا نوید ہم کو لاتا ہے، دوستو وہیں کچھ یادگار تاریخی واقعات بھی اس رمضان کی آمد کے ساتھ ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، زندہ قوم کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کو فراموش نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، وہ اپنے کرم فرماؤں کے تذکرے سے اپنی نسلوں کے ایمان کو
تقویت بخشتے ہیں۔ دوستو، رمضان آتا ہے، 3 رمضان کو سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدتنا فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی یاد ہم مناتے ہیں۔ اس کے بعد 10 رمضان آتا ہے، محسنہ امت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارکہ کی یاد دہانی کے طور پہ ہم یوم مادر مناتے ہیں۔ اور جیسے جیسے رمضان بڑھتا ہے دوستو، جب 17ویں تاریخ رمضان کی آتی ہے تو اسلام کی عظیم الشان جنگ غزوہ بدر کا یاد ہم کو آتی ہے، اور اسی دن ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا بھی یوم ہے۔ پھر 20 رمضان آتا ہے تو جہاں فتح مکہ کی خوشیاں ہم مناتے ہیں، وہیں شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے اساطین ہیں، یہ ہمارے قدوہ ہیں دوستو، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو انہی شخصیات کو پیش نظر رکھ کے ہم ان ایام میں انہی کی یاد کو ہم اپنا موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ کل 17 رمضان ہے اور آج 16 رمضان ہے۔ معرکہ بدر اسلام کا بہت عظیم الشان معرکہ ہے۔ حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے کی واضح مثال ہمیں معرکہ بدر سے ملتی ہے۔ تو دوستو، ہم اس معرکے کو اسی دن یاد کرتے ہیں، لیکن ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا امت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کے خدمات، ان کی فقاہت، ان کی علمی جلالت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور خلوت و جلوت کے روایات کثرت سے ہمیں بی بی عائشہ ہی کے توسط سے ملتے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے آج کا دن بی بی عائشہ کے نام سے معنون کیا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ بدر کے موضوع کے ساتھ آپ کے درمیان رہیں گے۔ تو بہرحال آج ہم کچھ اوراق بی بی عائشہ کی حیات طیبہ کے کھولتے ہیں، تاکہ دوستو جو رسول کے محبوب ہیں ان کی حیات کے مبارک لمحات ہماری زندگی کو بارونق بنائیں اور اس کی برکتوں سے ہم اور آپ فیضیاب ہوتے رہیں۔ ناظرین محترم، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یا نساء النبی
लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा। रब कायनात अज़वाज मुतहरात से मुखातिब है और कह रहा है, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हें नबूवत के काशाने से ताल्लुक है, रिफाकत है। नबी ने तुम्हें अपनी बीवी बनाना पसंद किया है, तुम नबी की बीवी हो, तो ये वो एजाज तुम्हें है, ये वो शर्फ तुमको मिला है, ये वो अजमत तुमको मिली है। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, इस एजाज में, इस शर्फ में कायनात की कोई औरतें तुम्हारे मसावी नहीं है। आम खवातीन की तरह तुम्हारा मामला नहीं है, बल्कि तुम नबी की रफीक हयात हो। रिफाकत नबुव्वत से तुमको सरफराजी हुई है। तुम आला हो, तुम अरफा हो, तुम अजमत वाली हो, तुम शान वाली हो। दोस्तों, उम्महातुल मोमिनीन का एजाज और उनके मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम होने के लिए रब कायनात ने इस तरीके से उनके मकाम को उजागर किया है। तो उम्महातुल मोमिनीन ये कौन है? ये आलम के कायनात के जितने मोमिन हैं जो क़यामत तक आने वाले हैं, दोस्तों, सारी उम्मत की ये माएँ हैं। ये रिश्ता इनसे हमारा माँ का है। ये हमारी माँ है, मादर मेहरबान है, शफकत वाली माँ है। तो ये बंधन से हमको इनसे बांधा गया है। ये वो पुरअज़मत ताज़ीम वाला रिश्ता इन हज़रात उम्महातुल मोमिनीन को रब कायनात ने अता फरमाया है। दोस्तों और बुजुर्गों, आज का उन्वान सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। हुज़ूर पाक से पूछा गया, सहाबा हुजूर से मुअद्दबाना मारूज़ा अर्ज कर रखते थे, दरियाफ़त फरमाते थे, अपने क़ल्बी एहसासात का हुजूर के सामने इजहार करते थे और उसकी इस्लाह भी चाहते थे। मकसद यही होता था कि हमारे क़ल्बी एहसासात दुरुस्त है या नहीं। तो उसी तवक्को और एहसास के साथ अपने एहसासात हुजूर के सामने अर्ज करते। दोस्तों, जो बात उनके दिल में होती वही बात उनके जुबान पे होती। दिल और ज़बान में कभी तज़ाद सहाबा या हम खैरुल कुरून के अफराद के पास नहीं पाते हैं। हमेशा यकसानियत रही है क़ल्ब के और ज़ुबान के दरमियान में। तो एक मौका है, एक सहाबी हुज़ूर पाक से मारूज़ा रखते हैं हुज़ूर के पास, या रसूल अल्लाह, कायनात में सबसे महबूब तरीन शय आपके पास कौन सी है? कायनात में सबसे महबूब किस चीज़ को आप रखते हैं? कौन सी चीज़ आपके पास पसंदीदा है? दोस्तों, हुजूर ने कहा आयशा। हुजूर ने क्या कहा? महबूब तरीन मेरे नज़दीक कोई अगर है तो हुजूर ने खुद अपने ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया है कि आयशा सबसे महबूब तरीन है मेरे नज़दीक। दोस्तों, साइल यहीं खामोश नहीं रहते, फिर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मर्दों में आपके नज़दीक सबसे महबूब कौन है? मर्दों में, मर्द अफराद में सबसे महबूब तरीन आपके पास कौन है? दोस्तों, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अबूहा।
आयशा के बाद, जहां आयशा को हुजूर ने महबूब तरीन कहा है, उसके बाद दोस्तों हुजूर मर्द अफराद में उन्हीं के वालिद मोहतरम को कहा है, हजरत अबू बकर को कहा है। साहिल ने फिर पूछा, दोबारा पूछा, हुजूर ने फिर वही जवाब दिया, अबूहा। फिर से 12 साहिल ने पूछा, तब हुजूर ने फरमाया उमर। तो नाज़रीन मोहतरम, हजरत आयशा से जो हुजूर को मोहब्बत थी, इसके लिए हुजूर ही का खौल मुबारक, हुजूर ही का फरमान मुबारक, कायनात में सबसे महबूब तरीन मेरे नज़दीक आयशा है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए इससे बड़ी और कोई दलील की ज़रूरत नहीं है, इससे बढ़कर हमें किसी और दलील की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन महतरम, हुजूर हज़रत आयशा की विलादत 5वीं साल नबवी में होती है। जिस साल हुजूर पाक ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं, उसके 4 या 5वें साल में हज़रत आयशा की विलादत होती है। दोस्तों और बुजुर्गों, जब हिजरत का इरादा हुजूर फरमाते हैं और सय्यदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल मुबारका होता है, तो हुजूर से निकाह की ख्वाहिश की जाती है। लोग आके खातून का नाम हदीस में आया है, जो फिल वक्त मेरे जहन में नहीं है। वो खातून आकर हुजूर से कहती है, या रसूलल्लाह, आप निकाह फरमाइए। हुजूर पूछते हैं किससे? तो फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अगर आप चाहते हैं तो आपको बाकिरा यानी बगैर शादी की हुई ख़वातीन भी आपके लिए हैं, और शादीशुदा ख़वातीन जिनका अपने शौहर से तलाक़ हुआ है या जिनके शौहर इंतकाल कर गए हैं, वैसे भी ख़वातीन हैं। आप जिनसे मुनासिब समझते हैं, आप निकाह का इरादा फरमाइए। क्योंकि बीबी खतीजा का विसाल हो चुका था। हुजूर बीबी खतीजा वाहिद खातून हैं। दोस्तों, उनकी ही हयात हुजूर पाक ने दीगर निकाह नहीं फरमाया। बीबी खतीजा की हयात मुबारका तक हुजूर ने कोई निकाह नहीं फरमाया। जब उनका विसाल हुआ तो हुजूर ने हज़रत आयशा से निकाह फरमाया। वो खातून हुजूर फरमाते हैं, ठीक है, कौन है बाकिरा में जिनकी शादी नहीं हुई है? तो फरमाती हैं, आपके रफ़ीक, आपके दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा है। वही खातून फिर हुजूर इजाज़त देते हैं, जाते हैं हज़रत अबू बकर के पास, घर को जाते हैं। अबू बकर नहीं रहते हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा से मुलाकात होती है, कहती है, मुबारक हो, तुम्हें एक ऐसी बरकत और ऐसी सआदत मिलने वाली है। क्या बात है? वो पूछती हैं। तो फरमाते हैं, आयशा का निकाह हुजूर पाक ने आयशा से निकाह के लिए रिश्ता भिजवाया है। फरमाती हैं, ठीक है, लेकिन आयशा के बाबा को आन दो, आयशा के वालिद को आन दो, वो बेहतर जानते हैं इस अमर को, इस मामले को वही बेहतर जानते हैं। दोस्तों, हज़रत अबू बकर तशरीफ ले आते हैं। खातून उनके सामने ये मामला पूरा बयान करती है। दोस्तों, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं भाई हूँ और आयशा उनकी भतीजी है। आयशा उनकी भतीजी है, क्या भतीजी से निकाह हो सकता है? मुझे ये इश्काल है। हज़रत अबू बकर ने कहा, भतीजी है और भतीजी से निकाह हो सकता है। ये मेरा सामने एक मसला है, मेरे सामने ये एक शक्ल दरपेश है। तो कहती है, ठीक है, हम इसका फतवा
हुजूर पाक से लेते हैं। वो खातून हुजूर के पास जाती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने ये कहा कि मैं हुजूर मेरे भाई हैं, मैं हुजूर का भाई हूँ, तो मिन हैसुल उखुवा, भाई होने के नाते भतीजी से निकाह क्या दुरुस्त है? ये अबू बकर को इश्काल है। तो हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं, अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं, बरादरे हकीकी जो होता है उसकी लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता है, दीनी भाई की बेटी से निकाह दुरुस्त है। तो ये हज़रत अबू बकर के इल्म में वो खातून लेकर जाके देती है, हज़रत अबू बकर राज़ी होते हैं, खुद में निकाह होता है, निकाह हो जाता है। हज़रत आयशा बिल्कुल कम उम्र है दोस्तों, 7 साल की उम्र ये गालिबन हज़रत आयशा की है। हुजूर से हज़रत अबू बकर निकाह फरमा देते हैं। उसके बाद यही खातून हज़रत सौदा के पास जाती है, वो आमादा होती हैं और कहती है कि मेरे वालिद से बात कीजिए। तो वही खातून हज़रत सौदा के वालिद के पास जाकर हज़रत सौदा की भी मर्जी रखती है और हुजूर का भी मंशा उनके सामने हज़रत सौदा के वालिद से करती है। तो हज़रत सौदा के वालिद राज़ी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हज़रत सौदा से निकाह होता है। तो हुजूर का हज़रत खतीजा के बाद निकाह हज़रत आयशा से हुआ, उसके बाद हज़रत सौदा से हुआ। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आयशा कम उम्र है, अपने ही वालिदैन के साथ रहती है और हज़रत सौदा हुजूर निकाह के बाद हुजूर के घर तशरीफ़ ले आई। घरेलू जिम्मेदारियां हज़रत सौदा अंजाम देती रही। हिजरत का मौका आया, हालात कुछ ऐसे बनते आ रहे थे हालात। हिजरत का मौका आया, सहाबा मदीने की तरफ हिजरत कर रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी हुजूर से मारूजा रखते हैं, या रसूलल्लाह हुक्म हो तो मैं भी मदीने की तरफ हिजरत करता हूँ। हुजूर ने कहा, अबू बकर नहीं, तुमको रफ़ीक मिलेगा, तुमको रफ़ीक सफ़र मिलेगा, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। ये कहकर हज़रत अबू बकर को हुजूर तसल्ली देते हैं। उसके बाद एक वक्त आता है, हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर चलो सफ़र हिजरत बांधो, हम तुम्हारे रफ़ीक हैं सफ़र हिजरत में, सफ़र में हम तुम्हारे रफ़ीक हैं। दोस्तों, हुजूर और हज़रत अबू बकर को अपने साथ लेकर मदीने की तरफ हिजरत फरमाते हैं। तो गर्ज़ के हज़रत आयशा मक्के ही में रहती हैं, हुजूर का खानवादा मक्के ही में है, हज़रत सौदा मक्के ही में है, हज़रत आयशा मक्के ही में है, हज़रत अबू बकर का सारा घराना मक्के ही में है। ये 2 अफराद मदीने मुनव्वरा जाते हैं, हिजरत करते हैं, हिजरत हो जाती है। हुजूर पाक के साथ हज़रत अबू बकर हिजरत करके मदीने को जाते हैं। वहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर होती है। उसके बाद कमरे बनाए जाते हैं, हुजरे बनाते हैं। हुजूर खुद हुजरे बनाते हैं, हुजूर खुद अपने लिए हुजरे बनाते हैं। फिर दोस्तों, मदीने से 2 सहाबा को मक्का भेजा जाता है, उनको कुछ रकम दी जाती है, मक्का जाते हैं, मज़ीद 3 ऊँट वो लोग खरीदते हैं। उसके बाद हुजूर के खानवादे को, हज़रत सौदा को, हज़रत बीबी फातिमा को और हज़रत अबू बकर के घर वालों को और हज़रत आयशा को, दोस्तों इन सब को लेकर मदीने की तरफ आते हैं। जब मदीना ये काफ़िला आता है तो हुजूर अपने कमरों में, अपने जो हुजूर ने घर बनाया था उस घर में, उस कमरों में बीबी फातिमा और हज़रत सौदा को वगैरह को रखते हैं और हज़रत अबू बकर से फरमाते हैं कि आयशा को तुम अपने पास लेकर जाओ। तो कहना नहीं है, कमसिन है, 1 साल गुजरता है मदीने में। अब उसके बाद 1 साल होता है तो हज़रत आयशा की उम्र 9 साल को हज़रत आयशा पहुँचती है। हज़रत आयशा अपनी उम्र के 90 साल में पहुँचती है।
حضرت ابو بکر حضور سے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دلہن کو آپ لے کر جائیے، آپ کی دلہن کو، آپ کی اہلیہ کو آپ لے کر جائیے۔ حضور فرماتے ہیں ٹھہرو ابو بکر، ابھی مہر کی رقم ہمارے پاس نہیں ہے، جب آ جائے گی تو ہم مہر ادا کر کے اپنی دلہن کو لے آتے ہیں۔ دوستو، یہ سادگی، یہ احوال اس دور کے حضور پاک اور مسلمانوں کے رہے ہیں۔ مہر کا یہاں پر دو باتیں ہمارے علم میں آ رہی ہے، ایک تو معاشی طور پہ ایک کمزور موقف، اور دوسرا مہر کی اہمیت۔ آج ہم نکاح کرتے ہیں، شادیاں ہوتے ہیں، دوستو مہر ایک صرف ضابطے کی تکمیل ہمارے پاس رہ گئی ہے۔ مہر صرف ضابطے کی تکمیل کے طور پہ رہا ہے، ورنہ ادائی کے لیے اکثر و بیشتر، میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ بہت سارے نوجوان جب ہی مہر ادا کر کر اس تقریب کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، لیکن عام طور پہ، عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ضابطے کی تکمیل، مہر معجل یا مہر معجل، بعد میں دینے والا مہر لکھ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ابو بکر ابھی ہمارے پاس مہر کے لیے رقم نہیں ہے، جب رقم آئے گی تو ہم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس سے رقم لیجئے، بعد میں مجھ کو دے دیجئے، میرے پاس سے آپ رقم لیجئے، آپ اپنا مہر کا مرحلہ طے کریجئے، بعد میں مجھ کو رقم میری حوالے کر دیجئے۔ دوستو حضور حضرت ابو بکر سے 500 اوقیہ قرض لیتے ہیں۔ حضور 500 اوقیہ حضرت ابو بکر سے قرض لیتے ہیں، اور حضرت عائشہ 9 سال کی ہے، کھیل رہی ہے دروازے سے ادھر ادھر، چھوٹی سی لڑکی ہے، ان کی ماں کہتی ہے عائشہ، حضرت عائشہ کو بلاتی ہے، کچھ انصاری خواتین کے حوالے حضرت عائشہ کو کر دیتی ہے، وہ خواتین حضرت عائشہ کا بناؤ سنگار کرتی ہیں، حضرت عائشہ کا بناؤ سنگار کرتی ہیں، حضرت عائشہ کو دلہن بناتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ دوستو کوئی باجا نہیں، کوئی تڑاخہ نہیں، کوئی عظیم مہمان نہیں، نبی کی وداعی ہے، حضرت عائشہ کی وداعی ہے، نبی کی شادی ہے، اور کس سادگی سے ہو رہی ہے، دلہن کو سجایا جا رہا ہے، اس کے بعد حضور تشریف لے آتے ہیں، اپنے ساتھ حضرت عائشہ کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ حضرت عائشہ کی کمسینی اور یہ مبارک رشتہ ازدواج میں حضرت عائشہ بن جاتی ہے۔ 9 سال حضرت عائشہ کی عمر مبارکہ ہے، اور حضور پاک کے گھر تشریف لے آ رہی ہے۔ دوستو بڑی خوبصورت خاتون، بڑی ذہین خاتون، بڑی، کیا میں اپنے پاس الفاظ کا استعمال میں نہیں کر سکتا ہوں، بہرحال فتین، بہت ہی بہت ہی سوچ بوجھ اور سمجھدار اور بڑی ذکی اور ہوشیار، یہ حضرت عائشہ کی حیات طیبہ، حضرت عائشہ کی یہ زندگی کے یہ روشن ابواب ہیں۔ جب حضور پاک کے پاس آتی ہیں، عمر کم سن ہے، لیکن دوستو فطانت حضرت عائشہ کے پاس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور حضور پاک سے مکمل استفادہ کرنے کا ملکہ بھی حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور حضور کو حضرت عائشہ محبوب تھی، اور حضور نوازتے بھی خوب تھے، حضور نوازتے بھی خوب تھے، اپنی فطانت سے، اپنے طریقوں سے یہ حضور کا سے مختلف طریقے سے سوالات کرتی، مختلف مسائل پر تعمق کے ساتھ ان مسائل میں غوطہ زن ہوتی، اور
खुरेद खुरेद कर हुजूर से पूछती, हुजूर से खुरेद खुरेद कर मसाइल पूछती और उन मसाइल से तशफ़ी अपने आप को तशफ़ी बख्श जवाब अपने आप को पा लेती। तो ये हज़रत आयशा की ज़िंदगी का अहम उन्वान है। दोस्तों, हज़रत आयशा ने हुजूर के साथ 9 साल हुजूर के साथ गुजारा है। 9 साला रिफ़ाक़त का दौर हज़रत आयशा को हुजूर के साथ हासिल हुआ। रिफ़ाक़त से पहले 9 साल की उम्र में हुजूर के हर में दाखिल हुई और जब हुजूर का विसाल मुबारका हुआ उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 18 साल की थी। 18 साल की उम्र हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की थी। दोस्तों, ये 9 साला दौर हज़रत आयशा का नाज़रीन महतरम इल्म की दुनिया में, फ़िक़्ह की दुनिया में और हुजूर के अहादीस वगैरह को बयान करने में दोस्तों एक एक लम्हे की रिवायत हज़रत आयशा ने बयान किया है। आपका मामूल था, आप मुफ्ती थी। दौरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में तभी आप अपने फतवे जारी करती थी। अपने मसाइल लोग पूछते और उनको जवाब देती। लोग आकर दरियाफ्त करते, हज़रत आयशा उनको तशफ़ी बख्श जवाब मरहमत फरमाती। जब दौर फारूकी और दौर उस्मानी आया दोस्तों, बाज़ाब्ता खलीफा वक्त हज़रत उमर हो या हज़रत उस्मान, ये लोग कोई मसला दरपेश होता तो नुमाइंदे को भेज कर मसले का हल हज़रत आयशा से दरियाफ्त फरमाते। मसले का हल हज़रत आयशा से दरियाफ्त फरमाते। तो दोस्तों, इल्मी सतह पे उम्मत में हज़रत आयशा से आगे हमको कोई और ख़वातीन में नज़र नहीं आती। क्यों? इनको मौका मिला, इनको हुजूर के बाद एक लंबी उम्र हज़रत आयशा को मिली और हज़रत आयशा का मामूल था कि हर साल हज बैतुल्लाह के लिए काबा शरीफ तशरीफ ले जाती। हर साल हज के लिए काबा शरीफ जाती। दोस्तों, जमजम के करीब आप पड़ाव करती और वहाँ पर एक पर्दा डाल देती। अपने वहाँ पर आप क़ियाम करती और वहाँ पर एक पर्दा डाल देती जहाँ पर काबे को, हज को, आलम इस्लाम के हर तरफ से हज़ारों लाखों लोग आते हैं। हर तरफ से लोग आते, हज करते और हज़रत आयशा के दर पे जाके अपनी इल्मी प्यास बुझाते, अपनी इल्मी प्यास बुझाते। हुजूर के अहादीस को हज़रत आयशा से सुनते, हुजूर के मामूलात को हज़रत आयशा से सुनते, हुजूर की शब व रोज़ के वाक़यात हज़रत आयशा से सुनते, दरियाफ्त पढ़ते। मसला कुछ आता, कोई दरपेश होता कोई मसला तो फ़ौरन हज़रत आयशा के पास जाते और हज़रत आयशा उनको तशफ़ी बख्श जवाब देती। तो नाज़रीन महतरम, हज़रत आयशा जो अहादीस बयान की हैं, जो अहादीस बयान की है, वो उनका मतमए नज़र क्या है, उनका सोचो विचार क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है। दोस्तों, ये फ़िक्र जो रिवायात खलवत के कसरत से हज़रत आयशा से मिलती हैं, दोस्तों उनका मकसद ये है कि हुजूर हर एक के लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसवे हसना है। तो दोस्तों, इस उसवे को बयान करने के लिए जो खलवत के है, अल्लाह ने हमको मुंतखब किया है। तो दोस्तों, उम्मत की तालीम के लिए ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी तालीम और रहबरी के लिए हज़रत आयशा ने उन रिवायात को बयान किया है। उन वाक़यात को कितने मसाइल की बुनियाद है वो अहादीस, कितने
फ़िक़ही मसाइल का मंबा है तो अहादीस। कितने उमूर जो हमको रोज़ दरपेश हैं उनके लिए मुकम्मल रहबरी हैं हज़रत आयशा के रिवायात। तो दोस्तों, ये हज़रत आयशा का इल्मी पस मंज़र है। और दोस्तों, जहाँ जो हुजूर के साथ इतनी महबूब, इतनी हुजूर की अजीज़ तरीन रही हैं, वो भी अजीज़, उनके वालिद भी अजीज़, उनके वालिद भी अजीज़, वो भी अजीज़। दोस्तों, मुखालिफिन को ये कहाँ देखा जाता, अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ। एक सफ़र का मौका आता है, एक सफ़र का मौका आता है, हुजूर के साथ सफ़र करती हैं। दोस्तों, हज़रत आयशा का हार गुम जाता है। सफ़र का तफसीलात में नहीं जाता हूँ, सिर्फ एक दो बातें आपके गोशे गुजार कर देता हूँ कि बहरहाल सफ़र में हार गुम जाता है, उसको तलाश करने के लिए फिर आप जाती हैं। फिर आए तक काफ़िला रवाना हो जाता है, हुजूर और काफ़िला सब चले जाता है। जो वहाँ पर पहले जो काफ़िला अगर कहीं पड़ाव करता था तो ऊँट के ऊपर एक हौदज होता था जिस पर बैठते हैं। तो जब ऊँट पड़ाव करता तो उसको ऊँट से अलहदा कर देते हैं, ऊँट से अलग करके, ताकि ऊँट को आराम मिले, ऊँट भी अपने खाने पीने के ज़रूरियात को तकमील कर ले और कुछ सस्ता ले। तो दोस्तों, उसको हटाया जाता। तो जब निकलते वक्त हज़रत आयशा दुबली पतली छरीली रही हैं। दोस्तों, वो लोग उस पड़ाव को, हौदज को उठाते हैं, ऊँट पे रख देते हैं, ऊँट पे उस हौदज को रख देते हैं। और हल्की फुल्की है हज़रत आयशा, ये ख्याल रहता है कि उसके अंदर हज़रत आयशा हैं। लेकिन पड़ाव आगे निकल जाता है, काफ़िला, हज़रत आयशा वहीं रहती है। लेकिन दोस्तों, तरीक़ा ये रहा है कि काफ़िले के पीछे, काफ़िले निकलने के एक दो फरलांग एक आदमी उसके रहता है। जो काफ़िला आगे निकलता है उसके बाद आता है, ताकि कोई चीज़ गिरी विरी तो नहीं रही, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, उसको तलाश करते हुए, उसको देख लेते हुए पीछे एक शख्स उस काफ़िले के पीछे आता। ये तरीक़ा अरब में रहा है, क़दीम से तरीक़ा है। तो यहाँ पर भी एक सहाबी उस काम के लिए मुतय्यन थे, जो काफ़िले के बाद आकर उन सामान को देखने के लिए हुजूर ने उनको रखा था। तो जब पीछे से आते हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत आयशा है। ये पर्दे के अहकाम के नाजिल होने से पहले हज़रत आयशा को इन्होंने देखा था। जब आकर देखते हैं तो हज़रत आयशा है। दोस्तों, वो अपने ऊँट पर अपना चेहरा वहाँ से पलट जाते हैं उस तरफ से, और उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, अम्मा जान आप बैठिए। फिर उस ऊँट पर हज़रत आयशा को बिठाते हैं। फिर रुकेल पकड़ के उस ऊँट को काफ़िले में हुजूर पाक के पहुँच जाते हैं। ज़ोहर तक ये हज़रात हुजूर के काफ़िले में पहुँच जाते हैं। दोस्तों, एक मुनाफिकीन हर दौर में लगे रहे हैं, और ये दौर तो इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, और हर तरफ से यलगार की जा रही थी, लेकिन हर तरफ से उनको रुसवाई और नाकामी हो रही थी। दोस्तों, तो कुछ घर की भेदी की शक्ल में मुनाफिकीन को इन्होंने छोड़ दिया था, मुनाफिकीन को इन्होंने छोड़ दिया था, जो कोई ऐसे मौके की फिक्र में रहते जो इस्लाम को कमज़ोर करने का बाइस होता। तो इस सफ़र में जब हज़रत आयशा उस सहाबी के साथ आती है तो ये बहतान और इफ्तरा हज़रत आयशा पे बांधी जाती है, हज़रत आयशा पर बहतान बांधी जाती है, और अपने हमनवा मुसलमानों को भी उसमें, सीधे सादा लौह मुसलमानों को भी उसमें शरीक कर लिया जाता है। दोस्तों, काफ़िला हुजूर पाक का हज़रत आयशा वगैरह सब मदीने को आ जाते हैं। हज़रत आयशा का मिजाज ख़राब हो जाता है, सेहत नासाज होती है, ये घर में अपने आराम करती है। उनको मुतलक इस हादसे का या इस इफ्तिरा का, इस बहतान का
ان کو مطلق علم نہیں ہے. اور حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ میں آئی مسلسل میری طبیعت ناساز رہی, مجھے دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر سے مجھ کو کوئی اطلاع نہیں ہے, میں اپنے مزاج میں ہوں, لیکن میں کیا دیکھتی ہوں حضور کا معمول جو انداز میں حضور میرے ساتھ رہتے تھے وہ انداز کو میں بدلا بدلا دیکھتی ہوں. حضور کا جو معمول مبارکہ میرے ساتھ تھا, جو انداز حضور میرے ساتھ جس انداز سے رہتے تھے, میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ حضور کا وہ معمول بدلا ہوا ہے. حضور گھر کو آتے ہیں, کسی اور سے پوچھتے ہیں کیا کیفیت ہے, حضور کیفیت لے لیتے ہیں, حضور مجھ سے نہیں پوچھتے ہیں. پھر ایک موقع آیا, ایک خاتون نے مجھ کو ساری تفصیلات بتائی, میں واقف ہوئی, مجھے بڑا گرا گزرا, میں روتے رہی, میرے آنسو سوکھ گئے. عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور سے کہا کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں, میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں. حضور نے مجھ کو اجازت دیا, میں اپنے گھر کو گئی, اپنے والدین کے پاس, ابو بکر کے گھر جو میرے والد ہیں ابو بکر کے پاس گئی. دوستو میں نے والد تو والدہ سے میں نے واقعہ پورا رکھا, میں نے ان سے مشورہ کرا. میری ماں نے کہا کہ عائشہ تم حضور کی محبوب ترین ہو, اس لیے اس قسم سے تم پر بہتان تراشا گیا ہے, تم فکر مت کرو, اللہ تمہارے لیے بہتر راستہ فراہم کرے گا. تم ایسے واقعات ہوتے ہیں. خاتون تجربہ کار تھی, دنیا دیکھی ہوئی تھی. یہ ماں نے بیٹی کو یہ تسلی دی, ماں نے بیٹی کو تسکین کا سامان فراہم کیا. دوستو حضور بھی تشریف لے آتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس, حضرت بکر کے گھر حضور بھی تشریف لے آتے ہیں. واقعات کہتے ہیں, حضور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہوئی تو کہہ دو, اللہ معاف کرنے والا ہے, نہیں تو اللہ بڑا اجر دینے والا ہے. بہرحال تسکین کی بات کرتے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جان کچھ بول لیجیے آپ حضور سے, میرے تعلق سے جو بہتان افطرا باندھا گیا ہے اس کی صفائی میں بیان کیجیے. حضرت ابو بکر خاموش رہتے ہیں. حضور کے سامنے کیا موقع, کیا جرأت ابو بکر کی. دوستو ابو بکر خاموش رہتے ہیں. حضرت عائشہ ماں سے کہی تھی اماں آپ تو کہیں, آپ تو کچھ میرے تعلق سے کہیے. دوستو ماں کی کیا جرأت, جہاں شوہر خاموش ہے عورت بیوی کی کیا جرأت, خاموش ہوتی ہیں, صبر کرتے ہیں. اب حضرت عائشہ ڈھارس باندھتے ہیں اور دوستو بڑی معرکۃ الآراء حضرت عائشہ کا خطاب اس میں روایات میں احادیث میں موجود ہے. وہ یہی کہتی ہیں کہ یوسف کو جس طریقے سے برات ملی یقیناً مجھ کو بھی برات ملے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے پوری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ میری برات کو نازل فرمائے گا, میری صفائی رب کائنات دے گا. دوستو یہ مختصر سا واقعہ جو رونما ہوا تھا یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اسی محفل میں قرآن پاک کی آیات کریمہ نازل ہوتی ہے. 10 آیتیں, ایک نہیں دو نہیں بلکہ 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوتی ہیں. اسی محفل میں کچھ دیر میں, اسی محفل میں جو حضرت عائشہ, حضرت ابوبکر, حضرت عائشہ کی والدہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جس میں حضرت حضور عائشہ کے باپ حضرت ابوبکر سے بات کرنے گئے تھے, حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے تھے. دوستو یہ گفتگو چل ہی رہی ہے حضرت عائشہ کی اور حضور پاک کے درمیان میں. دوستو حضور جب وحی کا آمد ہوتی تو حضور کی کیفیت متغیر ہوتی. وہاں جب نزول وحی کے جو طریقے بتائے گئے ہیں, 9 یا 11 طریقے بتائے گئے ہیں کہ جو وحی کا جب نازل ہوتا, کبھی سلسلۃ الجرس بلکہ آیا ہے. وحی جب نازل ہوتی
تو گھن جو اپنے بیل جو بجتی تھی کیا گھن ایسی تیز آواز حضور کے کانوں میں آتی. کبھی حضور گرما شدید ترین گرما ہے اور حضور جاڑا ہے, شدید ترین جاڑے کا موسم ہے. مدینے کا جاڑا دوستو جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کتنا شدت کا جاڑا ہوتا ہے. ویسے جاڑے میں حضور کے پیشانی سے پسینہ آ جاتا, حضور کے پیشانی ورکا پر پسینہ آ جاتا. کبھی جاڑا شدید ہوتا. بہرحال مختلف وحی کے نزول وحی کہ جب ہوتی تو اس کے مختلف نو طریقے روایات حدیث میں آئے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پسینہ حضور کے پیشانی مبارک پر آیا, پسینہ آیا اور حضور نے اس کے بعد کہا ابو بکر یہ آیات عائشہ کی صفائی میں نازل ہوئی. بارات عائشہ کے پورے آیات حضور نے وہاں پر سنایا. تو دوستو اور ناظرین محترم, حضرت عائشہ کی بارات جو منافقین نے بہتان بنا تھا, رب کائنات نے اس کا وحی الہی کے ذریعے جواب دیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھ کو میری برات کرے گا, لیکن مجھے ایسا نہیں معلوم تھا. میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی خواب کے ذریعے حضور کو مطلع کر دیا جائے گا. جی ناظرین گرامی, ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ بھیا دیکھیے یہ ایک آدمی کا فطرہ کتنا دینے کا ہے, 2.5 کلو دینا ہے, گیہوں کا آٹا نہیں 3 کلو دینا. جی اس سلسلے میں بات کریں گے. محترمہ کال کرنے کے لیے شکریہ. ناظرین گرامی اس سوال پر بھی بات ہوگی, گفتگو ہوگی. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور نہ صرف یہ کہ دیے گئے عنوان پر گفتگو ہوگی بلکہ آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین گرامی, آپ کا ہمارا نور رمضان اس پروگرام کے تحت روزانہ ایک عنوان کے تحت بات ہوتی ہے. ناظرین گرامی, جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ملک اور ریاست شہر کے علاوہ دنیا بھر میں اس وقت لاک ڈاؤن جاری ہے. رمضان المبارک بھی چل رہا ہے جس کی وجہ سے کئی ایسے یومیہ اساس پر کمانے والے کافی پریشان ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہم متمول حضرات اور صاحب خیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو ہے آگے آئیں اور ایسے افراد کی مدد کی جائے, ایسے افراد تک راشن پہنچایا جائے اور یہ بھی ایک جو ہے خدمت خلق ہوگی. ناظرین آج کے جو پروگرام کا عنوان دیا گیا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ پر بات ہو رہی ہے. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اپنی گفتگو جاری رکھیں. اس درمیان میں اگر سوالات کوئی ناظرین کرتے ہیں تو ہم ان کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال ہمیں جو آیا تھا وہ جو ہے اس تعلق سے تھا کہ فطرہ جو دیا جاتا ہے, یعنی فدیہ جو دیا جاتا ہے اگر کوئی روزے نہیں رکھ پاتے. ایک خاتون نے کال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ شوگر کی وجہ سے, ڈائبٹیز کی وجہ سے جو ہے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں, تو وہ فدیہ دینا چاہ رہی ہیں. تو اس کا فدیہ کتنا ہوگا, یہ سوال تھا. میں چاہوں گا کہ مولانا اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. دیکھیے, فدیے کے لیے جو ایک فطرہ ہوتا ہے اس کو ہم مختص کر سکتے ہیں, اور فطرہ ہم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم, کون اور کہاں سے محترم؟ جی وعلیکم السلام محترم, آپ کی آواز آ رہی ہے, اپنا سوال کریں آپ. جی سوال یہ تھا کہ سر فاتحہ کے تعلق سے جی میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا تھا 11 رمضان کو, جی اور 14 رمضان کو زیارت کی. جی ایک 10 سال پہلے میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا تھا جی جو کہ 16
रमजान को हुआ था। जी तो महल्ले के लोग कुछ ये बोल रहे हैं कि 2 फातिहा नहीं कर सकते, आप ज़ियारत कर दिए हो गया। जी अब मेरी बड़ी बहन के फातिहा आ रहे हैं 16 तारीख को, तो वो ये कह रहे हैं कि आप फातिहा नहीं कर सकते, एक घर में 2 फातिहा कैसा होते? कोई शरई ऐसा सही काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, इस पर बात करेंगे मोहतरम। जो यही रमज़ान में हुआ था जो इंतकाल जो हुआ था अभी फिल वक्त? परसों 11 को हुआ। जी 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 14 को हम ज़ियारत कर दी, अब 16 को मेरी बहन के फातिहा करेंगे बोले, तो लोग बोल रहे हैं कैसा करते आप 16 को फातिहा, जी क्योंकि ऑलरेडी आप ज़ियारत कर लिए, तो जी एक ही घर में 2 फातिहा नहीं होते, ऐसा बोल के बोल रहे जी बिल्कुल। इस सिलसिले में हैं। और जी नमाज में जी आयतल कुर्सी, क्योंकि आयतल कुर्सी एक ही आयत है, तो एक रकात में आयतल कुर्सी पढ़ के रकात हो सकती है क्या? अच्छा जी बिल्कुल, इस सिलसिले में भी बात करेंगे मोहतरम। कॉल करने के लिए शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम देखते रहे आप। जी मौलाना, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, सवाल भी आप सुन चुके हैं। देखिए, जो फितरा होता है वही फिदिये में आप रोज़े के उसमें फिदियात दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों फितरे में हमारी कोशिश ये हो कि अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा दें। और रोज़े में हमारे पास मामूल है कि 2 टाइम का खुराक कम से कम जिसको हम दे रहे हैं पहुंच सके, ये हमारी पास तरीक़ा है। दक्कन में कदीम से ये तरीक़ा राइज है, तो बहरहाल अच्छा मुस्तहसन तरीक़ा है। यहाँ इस अमल में शरीयत से तज़ाद नहीं है, बल्कि कार खैर की तरफ ज़्यादा रग़बत है। तो उसी तरीक़े को राय रखते हुए 1-2 टाइम के खाने की जो नकदी हो सकती है आप वो फितरे में दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा गया तो अजर है, कम ना पहुँचे, लेकिन इस शक्ल में ज़्यादा ही पहुँच रहा है। अगर गुंजाइश है तो दीजिए, वरना एक फितरे की रकम आप अदा कर दें तो आपका फिदिया रोज़े की तरफ से अदा हो जाएगा। और रही बात जो अभी साहिल ने सवाल किया कि 14 को ज़ियारत हुई है भावश की, 16 को बहन की बरसी है, गालिबन इस साल इंतकाल नहीं हुआ। अब जैसा कि बताया 10 साल कबल बहन का इंतकाल हुआ, तो 10वीं बरसी गालिबन इस साल 16 रमज़ान को आ रही है। तो अहले ख़ानदान हो या अहले मोहल्ला हो या दोस्त अहबाब हो, कह रहे हैं कि एक साथ एक घर में 2 फातिहा नहीं हो सकती। नाज़रीन मोहतरम, फातिहा जो हम करते हैं वो ईसाल सवाब की एक तरीक़ा है। ईसाल सवाब का एक तरीक़ा है। मरहूमीन के सवाब के लिए हम कुरान ख़वानी करते हैं। मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए हम खाना वग़ैरह पकाकर खाते भी हैं, रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं, फ़ुक़रा और ग़ुरबा को भी तक़सीम करते हैं। तो ये एक ईसाल सवाब का एक तरीक़ा हमारे पास राइज है। दोस्तों, एक भावच की ईसाल ज़ियारत हो गई, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया आपका। अब उसके बाद आप 14 को ज़ियारत हुई, आप 14 के दिन ही और एक फातिहा भी आप कर सकते हैं और एक ईसाल सवाब की महफिल भी रख सकते हैं। एक ही महफिल में कई चीज़ों को भी आप शामिल रख सकते हैं। शरीयत बड़ी वसी चीज़ का नाम है, उसमें तंग नज़री या कशफहमी का शरीयत में दखल नहीं होता है। बहुत सारे रसूम और रिवाज जो हमारे अपने बनाए हुए हैं हम शरीयत में दाखिल कर लेते हैं। दोस्तों, शरीयत ऐसा नहीं, मुतलक ईसाल सवाब ये एक शरई हुक्म है, एक शरई मसला है। आपके मरहूमीन को आप ईसाल सवाब पहुंचा सकते हैं। अब उसके लिए ये सब जो बातें आपके हैं ये घरेलू और इख्तिराई बातें हैं, शरीयत से इसका कोई दखल नहीं। आप अपनी बहन की भी ईसाल सवाब की महफिल 16 तारीख़ आज ही है, अपनी बहन की भी आप ईसाल सवाब की महफिल मुनक़िद करीजिए। उनके ईसाल सवाब के लिए जो तरीक़े जो ज़राए आप इख्तियार करना चाहते हैं करके आप उनके लिए, और याद रखिए मरहूमीन मुंतज़िर रहते हैं। हमारे जो इंतकाल कर गए हैं अज़ीज़ व अक़ारिब, वो हमारे ईसाल सवाब के मुंतज़िर रहते हैं। तो उनके ईसाल सवाब के जो भी ज़राए, जो भी मौक़े हों, हम उनको करें। इस किस्म की बातों का शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। शरीयत ऐसी तंग नज़री की तालीम नहीं देती, बल्कि शरीयत वुसअत की तालीम देती है।
جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی محترمہ. السلام علیکم بھیا. دیکھیے ایک جنوں کا فطرہ 2.5 کلو دینا ہے، 3 کلو دینے کا ہے. جی نہیں بول رہے صاحب. جی جی اس پر بھی بات کریں گے محترمہ. کال کرنے کے لیے شکریہ. جی محترم. اور آیت الکرسی ایک آیت بڑی، پورے نماز میں ایک آیت پڑھ لی جائے لیکن بڑی سی آیت ہو تو ایک آیت ایک نماز کے لیے کافی ہے. اب محترمہ نے فطرے کے لیے 2.5 کلو بتایا ہے. محترمہ 2.5 کلو آپ دیجئے. 2.5 کلو کا فطرہ جو ہوتا ہے آپ برابر 2.5 کلو ہی فطرے کے طور پہ آپ دیجئے. انشاءاللہ آپ کا فطرہ بھی ادا ہو جائے گا، فدیے کے طور پہ روزے کا آپ کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا. بالکل. ناظرین گرامی، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ فاتحہ سیوم کے بعد دوسری فاتحہ بھی کی جا سکتی ہے. آپ نے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی اور محترم کی جانب سے کیے گئے سوال کا جواب بھی دیا. ناظرین گرامی، میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہی جامعہ نظامیہ کی جانب سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے سوال پوچھے جانے پر اعتکاف کے مسئلے پر، اور مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے کہ چونکہ مساجد میں اعتکاف پر کوئی پابندی نہیں ہے، 1 یا 2 حضرات اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو سنت کفایہ ہے اس کی ادائیگی ہو سکے. اور خواتین کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات کا اعتکاف چونکہ گھر میں نہیں ہوگا اسی لیے مساجد کا انتخاب کیا جائے اور اپنے محلے کی مساجد میں 1 یا 2 مصلی جو ہے اعتکاف کرتے ہوئے اس سنت کفایہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں. بصورت دیگر تمام محلے پر جو ہے یہ سنت کفایہ رہے گا. اور دوسری جو بات کی گئی ہے وہ نماز عید کے تعلق سے، چونکہ لاک ڈاؤن جاری ہے، لاک ڈاؤن میں نماز عید ان شرائط کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز شکرانہ کی 2 رکعت نفل نماز شکرانہ ادا کیا جائے. آج ہی جب جامعہ نظامیہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تب انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے. آج ہی کی تاریخ اس پر ہے. جی مولانا، آپ کیا تذکرہ کرنا چاہیں گے، آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے اس وقت پر؟ جی دیکھیے، نماز عید کا جو شرائط ہیں وہ شرائط ہم نے پرسوں بھی اس پر بڑی تفصیلی طور پہ جمعہ کے عنوان پر ہم نے عید کی بھی نماز کو شامل کر لیا تھا. تو پھر تبصرہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. جو مفتی صاحب کا فتویٰ ہے وہ منوان اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور بالکل مفتی صاحب کا فتویٰ عین شریعت کے مطابق ہے. مفتی صاحب کے فتوے پر تبصرے کرنے کے ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. مفتی صاحب وہ ہمارے استاد ہیں اور ہمارے لیے قدوہ ہیں، اور وہ بڑی اپنی علمی تبحر ان کے پاس ہے اور نظر ہے ان کی فقہ پر. تو وہ منوان یقیناً وہ مصیب ہے، اپنے فتوے میں وہ درست ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. کالر کہاں سے محترم؟ جی محترم، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریں. جی بھائی صاحب، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی دھیمی کر لیں تاکہ آپ سے رابطہ برابر ہو. شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی. جی مولانا، جیسا کہ ہم عنوان پر بات کر رہے تھے، آپ نے بڑے تفصیلی انداز میں بتایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں تفصیلات بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ آپ ہی کی جانب سے جو ہے کئی احادیث مروی ہیں اور آپ اپنے دور میں مفتیہ رہی ہیں اور آپ نے کئی فتاوی بھی جو ہے جاری کیے ہیں. تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو آپ کا رول رہا ہے اسلامی دنیا میں، اس پر ایک مختصر سی نظر ڈالیں. دیکھیے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اہم کارنامہ یہی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں علمی اور فقہی مسائل میں امت کی رہبر و رہنما رہی ہیں. اور ناظرین محترم، حضرت عائشہ کو جو خصوصیات حاصل رہی ہیں وہ بڑے امتیازی خصوصیات کی حامل رہی ہیں.
खुद हज़रत आयशा फरमाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उन्होंने माफ़ी चाहूँगा, गुफ्तगू जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? जी मोहतरम। जी मोहतरम। ये अभी जो राशन के चावल है ना, वो फित्रे में दे सकते क्या? और फित्रे में देना है तो चावल कितने किलो देना है, जरा बोल सकते हैं भाई? ओके मोहतरम, कॉल करने के लिए शुक्रिया, इस पर बात होगी। जी बिल्कुल, तो अपनी गुफ्तगू जारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सहाबा आते हैं और अपने मसाइल पूछते हैं। एक मौके पे जो हुजूर का सरतापा हज़रत आयशा ने बयान किया है, दोस्तों कितना आला अंदाज में हज़रत आयशा ने बयान किया है। सहाबा आते पूछते हैं हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर के अखलाक कैसे थे। तो दोस्तों हज़रत आयशा जवाब देती हैं, अंदाज़ा लगाइए, जामिअ जवाब, सरतापा खींचा है हज़रत आयशा ने पूरा हुजूर का। फरमाया काना खुलुकुहु अल कुरआन। सहाबा आके पूछे कि अखलाक़ मुस्तफ़वी कैसे थे, हुजूर के शब व रोज़ कैसे थे, हुजूर की घरेलू ज़िंदगी क्या थी। जामिअ जवाब हज़रत आयशा ने दिया कि हुजूर के अखलाक सरतापा कुरान, कुरान जो है वो सारे के सारे हुजूर के अखलाक थे। ज़ुबान सारे का सारा कुरान हुजूर की अमली ज़िंदगी रहा है। कुरान के जितने अहकाम थे उन सब का सुदूर हुजूर ने किया है। तो ये हुजूर के अखलाक को हज़रत आयशा ने बयान किया। फिर एक दफ़ा पे आके किसी सहाबा ने पूछा हुजूर घर में क्या मामूलात रहते थे। फरमाए हुजूर अपने काम करते थे, हुजूर अपने काम करते थे, हुजूर अपने ही उमूर आप ही अंजाम देते थे, हुजूर अपने जो ज़रूरियात होते थे उनकी तकमील हुजूर ही फरमाते थे। तो दोस्तों ये हज़रत आयशा का मामला रहा। हज़रत आयशा ने क्या कहा, ख़ुद अपनी में हज़रत आयशा के ख़ुसूसियात बयान कर रहा था। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं हुजूर की अहलिया हूँ जिसको ये शर्फ़ हासिल है कि हुजूर का विसाल, हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरे गले और मेरे गोद के दरमियान हुजूर का विसाल हुआ। हुजूर का विसाल हज़रत आयशा की मांडी पे हुजूर का सर मुबारक रहा। फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं हुजूर मिसवाक की ख्वाहिश किए तो मैंने अपने दांतों से मिसवाक को चबा कर दिया और हुजूर ने मिसवाक किया। दोस्तों फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं हुजूर के साथ रहती थी और हुजूर पर वही इलाही नाजिल होती थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जिब्राईल को मैंने देखा है, जिब्राईल को मैंने देखा है। हज़रत आयशा फरमाती हैं जिब्राईल का सलाम हज़रत आयशा पर आया है। ऐसे कई मामलात हैं दोस्तों। और एक हज़रत खानवादे सिद्दीक़ी या हज़रत आयशा की मरहूम मिन्नत हम कहें कि जहाँ बेशुमार उमूर इस खानवादे के से सरंजाम पाए हैं, उन्हीं उमूर में जब तयम्मुम का मसला आया, तयम्मुम का मसला आया, सफ़र का मौका था दोस्तों, उसी वाक़े को जो हमने इससे पहले तफसील से बयान किया है दोस्तों। मुसाफिर क़ियाम किए, वक़्त फ़जर की नमाज का वक्त आया, वक़्त नमाज का आया, सहाबा बेचैन हुए, बोले अबू बकर तुम्हारी बेटी की वजह से हमको रुकना पड़ा, यहाँ करीब में पानी भी नहीं है, नमाज फ़जर कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों हज़रत आयशा के पास हुजूर हज़रत आयशा की मांडी पर सर रख के सो रहे हैं। हज़रत अबू बकर आते हैं, अपनी बेटी को पर खफगी ज़ाहिर करते हैं, अपने उंगली से यूँ छेदते हैं, यानी जिस्म को इस तरीके से गुस्से का इजहार करते हैं बेटी से। हज़रत आयशा हुजूर मांडी पे आराम करते हैं, करे हुए हैं, कहीं हुजूर बेदार ना हो जाएं, उसको बर्दाश्त कर लेती, तकलीफ़ करती है। कहती है कि तुम्हारी वजह से नमाज का वक्त, फजर का वक्त आ गया है, पानी नहीं है, ना पीने के लिए पानी है, ना ज़रूरियात की तकमील करके वज़ू करने के लिए पानी है। क्या करिए आयशा तुम, ये तुम्हारी वजह से मसला हुआ। दोस्तों देखिए मसला होता है, वही हुजूर पे वही आती है, तयम्मुम को वज़ू का नायब गर्दान आ गया, तयम्मुम वज़ू की नियाबतन के तौर पे उम्मत को तयम्मुम का हुक्म आया।
तयम्मुम का मसला हमको और आपको मिला। तयम्मुम जो हम करते हैं आज दोस्तों, क्या शराइत है? पानी नहीं है, वुज़ू करना है, गुस्ल करना है, फिक्र मत कीजिए, तयम्मुम का हुक्म है। तो हुक्म कब मिला? खानवादे सिद्दीकी के इसी जो मसला जो पेश आया, इसी की वजह से तो लोग मुबारकबादी दिए देते अबू बकर को कि तुम्हारे खानवादे की वजह से ये मसला हमको तयम्मुम का मिला है। तो दोस्तों हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरे जो खुसूसियात हैं, 10 खुसूसियात हज़रत आयशा ने गिनाया है, जो फजीलत मुझको हासिल है, 10 खुसूसियात में मुझको फजीलत हासिल है। मिन जुमला उसमें कि हज़रत आयशा ये भी कहती है कि हुजूर को सारी अज़वाज मुतहरात हुजूर की मैं ही हूँ जो बाक़िरा है, जो पहले मेरी ना किसी से निकाह हुआ ना किसी से तलाक हुई है। दीगर जो अज़वाज मुतहरात हैं उनकी ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं शादी हो कर थी। हज़रत आयशा खुद उन्हीं की ज़ुबानी में कह रहा हूँ कि ये खुसूसियत मुझको ही हासिल है। मेरे पास हुजूर रहते थे और हुजूर पे वही इलाही नाजिल होती थी और मैं हुजूर की सबसे ज़्यादा चहीती हूँ और मेरे वजह से ये मसाइल ऐसे आए हैं। तो हुजूर हज़रत आयशा खुद अपने फ़ज़ाइल 10 फ़ज़ाइल बताती हैं जिसमें कोई और मेरे साथ शरीक नहीं है। तो दोस्तों हज़रत आयशा की उम्मत की बड़ी इल्मी शख्सियत रही है और हज़रत आयशा के यहाँ बेशुमार एहसानात है। सबसे अज़मत उनको इस बात पर ही है, उनकी फ़ौक़ियत इस बात पर ही है कि हुजूर उनकी हर अदा को सहते, उनके मिजाज, उनकी जो तरीक़ा कहिए या कुछ, बहरहाल उम्र कम उम्री थी हज़रत आयशा की, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर उनके लाड़ और प्यार को सहते, उनके साथ हुजूर बराबर रफ़ाक़तदारी अंजाम देते और उनकी खुशी के लिए हुजूर सामान मुहैया करते। और हुजूर उनको क्या कहते हैं दोस्तों, बड़ी खूबसूरत थी हज़रत आयशा। हुजूर उनको हुमैरा के लक़ब से याद फरमाते। हुजूर हज़रत आयशा को हुमैरा कहकर बुलाते और हज़रत आयशा फरमाती है कि हुजूर नमाज़ पढ़ते, तहज्जुद घर में अदा करते और मैं सो के रहती रात में। तो हुजूर तहज्जुद पढ़ते हैं, कमरा छोटा है, इससे पहले बताया था मैं हुजूर के कमरे का मेजरमेंट कितना हुजूर का कमरा है। दोस्तों हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं हुजूर नमाज़ पढ़ते, मैं सोती सामने, जब हुजूर सजदा करते तो मुझको इशारा करते, मैं अपने पैर को करीब कर लेती। हुजूर अपने हाथ से मुझको इशारा करते, मुझको तब बेदार कर देते, मैं फौरी अपने पैर को करीब कर लेती हूँ। फिर जब हुजूर का सजदा हो जाता फिर मैं अपने पैर को लंबे कर लेती। तो ये सारे खुसूसियात ये हुजूर के साथ हज़रत आयशा की जो खुसूसी हज़रत आयशा के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इल्तिफ़ात है। दोस्तों ये इनायात हज़रत आयशा को खूब हासिल हुई और हज़रत आयशा को हुजूर ने इल्म का एक बड़ा ज़ख़ीरा हुजूर से हज़रत आयशा ने हासिल किया। छेद कर सवालात करती, छेद कर यानी मसाइल में गर्क होती, मसाइल में फ़िक्र करती, फिर हुजूर को पेश करके उसका हल दरियाफ़्त कर लेती। तो ये खुसूसियात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल है। दोस्तों सन 58 हिजरी में हज़रत आयशा का 17 रमज़ान मुबारक को विसाल होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और जन्नतुल बक़ी में हज़रत आयशा के भांजे भतीजे वग़ैरह हज़रत आयशा को क़ब्र में उतारते हैं। दोस्तों हज़रत आयशा की हयात तय्यबा की ख़ुसूसियात ये हैं कि ये बड़ी फ़य्याज़ ख़ातून रही हैं, बड़ी फ़य्याज़ ख़ातून रही हैं। दोस्तों 1-1 लाख दिरहम आते भतीजे के पास से, हज़रत भांजों के पास से, या उस ज़माने के साहिब सरबत लोग हदिया और नजराना भेजते। दोस्तों 1-1 लाख दिरहम भी आता। दोस्तों हज़रत आयशा की बांदी फरमाती है कि दूसरे दिन 1 दिरहम भी बाकी नहीं रहता। जिस दिन आया उस दिन खैरात हो जाता, जितना आया सब का सब राह खुदा में लुटा देते। ये हज़रत आयशा की फयाजी रही है।
ये हज़रत आयशा का ज़िंदगी का अहम पहलू है जो फैयादा रही हैं। सब का सब आपने रब की रज़ा और खौफ व खशियत के हज़रत आयशा का क्या आलम। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आयशा का जब वसाल का वक्त करीब आता, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत आयशा के मनाक़िब बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब हज़रत आयशा के वसाल का वक्त करीब आता है तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मनाक़िब आयशा बयान करते हैं, हज़रत आयशा के फ़ज़ाइल का तज़किरा करते हैं। तो हज़रत आयशा क्या फरमाती है, काश आयशा एक तिनका हो जाती, आयशा नहीं पैदा होती बल्कि एक तिनका होता तो आयशा को ज़िंदगी ने मरा खौफ व खशियत का ये आलम है। कहते आयशा तिनका होना गवारा कर रही है, तिनका हो ही तो बेहतर था। कहते आयशा की ये खौफ व खशियत का ये मामला है, ये आपका रब कायनात से मामला है। कसरत से आप इबादतें करती, कसरत से इबादतें करती, कसरत से रोज़े रखती। दोस्तों 9 ज़िलहज्जा का आप रोज़ा रखी हुई थी, 9 ज़िलहज्जा का आप रोज़ा रखी हुई थी। आपके भतीजे कहते हैं फूफीजान गर्मा इतना शदीद है, गर्मा इतना शदीद है, मौसम बड़ा सख्त है, नफिल रोज़ा आपने रखा, पानी पी लीजिए, रोज़ा खोल लीजिए, बाद में इसकी क़ज़ा करिए, बाद में इसकी क़ज़ा कीजिए। दोस्तों हज़रत आयशा खौफ व खशियत से डराती है अपने भतीजे को, बताती है कि खशियत इलाही हुज़ूर ने आज के रोज़े को 1 साल के गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया बनाया है, 1 साल के गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया बनाया है 9 ज़िलहज्जा के रोज़े का, और मैं 1 साल के कफ़ारे को इस आसानी से छोड़ दूँ कि अपने भतीजे को तंबीह करती है। तो ये मामूलात, ये इबादत, ये ज़ुहद, ये खशियत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। अल्लाह हमको उनके उस पे पर चलाए, उनकी तालीमात और उनके जो फ़क़ही ज़हन, रोशन ज़हन हैं, उसके हिस्से से हमको भी अल्लाह ताला सरफ़राज़ फरमाए। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़त्म रमज़ान तक हमारा ये ख़ुसूसी प्रोग्राम नूरे रमज़ान जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बात कर रहे हैं। रोज़ाना एक उन्वान का इंतख़ाब किया जाता है और उस पर तफसीली गुफ्तगू की जाती है। आप सवालात भी इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। ये प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा, आखिरी लम्हात। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मैं मिस्रीगंज से बोल रही हूँ जी। मेरे को ये सवाल पूछना था कि सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ते हैं तो पूरा नमाज पढ़ने का वक्त क्या है रात में, और दिन में भी पढ़ सकते क्या, और जगने की रकम को सलातुल तस्बीह और ताहज्जुद 2 एकसाथ में पढ़ना उनके तरीके है, ताकि काम करते हैं। जी बिल्कुल मोहतरम, इस पर बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी मोहतरम, ये आखिरी जवाब होगा प्रोग्राम का। मोहतरम सलातुल तस्बीह के ताल्लुक़ से मोहतरम ने सवाल किया है। देखिए, सलातुल तस्बीह उम्र में कभी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, तकरार से भी पढ़ सकते हैं। कम से कम एक दफ़ा तो पढ़ने की ताकीद आई है, एक दफ़ा तो पढ़ने की ताकीद आई है। तो हम आम तौर पे जगने की रातें जो आती हैं तो उन रातों में एक खुशू और खुजूर रहता है और उसकी एक अहमियत रहती है और उसके अनवार नाजिल होते हैं। तो उन रातों में हम खुसूसियत के साथ सलातुल तस्बीह का अहतमाम करते हैं और सलातुल तस्बीह पढ़कर आप तहज्जुद पढ़िए। सलातुल तस्बीह और तहज्जुद 2 अलग अलग नमाजें हैं। सलातुल तस्बीह के साथ तहज्जुद शामिल करें ऐसा नहीं होता। आप सलातुल तस्बीह पढ़िए, उसके बाद तहज्जुद पढ़िए। तो आप रात के किसी भी हिस्से में सलातुल तस्बीह पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई पहर, कोई वक्त इसके लिए रात का कोई मुतय्यन नहीं है। जिस वक्त भी आप चाहते हैं सलातुल तस्बीह अदा कर सकते हैं। जो उसके तरीक़ेकार बताया गया है उसमें कसरत से तस्बीह हो तो उसको जो भी तरीक़ा है अब आपको मिल जाएगा, यहाँ पर समझाने का मौका नहीं है। तो बहरहाल उसको पेश नज़र रखते हुए आप कसरत से रोज़ाना पढ़ सकते हैं सलातुल तस्बीह। ऐसा कुछ रमज़ान का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह आप तरावी पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा
آرام کیجئے, اس کے بعد اٹھ کے صلاۃ التسبیح پڑھیے, پھر صلاۃ التہجد پڑھیے. جیسا آپ کو موقع ہے, جتنا آپ کو حمر النعم کے الفاظ آئے ہیں کہ اتنا اجر اس کے اندر ہے, بے شمار اجر صلاۃ التسبیح میں پنہا ہیں. تو اس نماز کو مدرائے گاہ کیجئے. تہجد الگ ہے, صلاۃ التسبیح الگ ہے. تو دن کے اوقات میں بھی کیا ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, نوافل جو ہیں اس میں خشوع اور خضوع کی بڑی اہمیت ہے. تو اس خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہم کو ملتی ہے وہ رات ہی میں ملتی ہے. رات ہی میں خشوع و خضوع, کیونکہ ہر طرف سناٹا رہتا ہے, خاموشی رہتی ہے, بالکل ہم بھی سارے افکار سے, شور شرابے سے سارے ہم پرے رہتے ہیں. تو اس کے لیے رات کا وقت ہی بہتر ہے, رات کا وقت ہی بہتر ہے. اگر کوئی دن میں صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہ رہا ہے تو ناظرین محترم ادا کر سکتا ہے, شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل ناظرین گرامی, آپ نے سنا آج کے عنوان پر کافی تفصیلی گفتگو ہوئی اور ساتھ ہی سوالات کے جوابات بھی دیے گئے. میں مولانا کا مشکور ہوں کہ باوجود دونوں کو مصروفیات کے وہ ہمیں وقت دے رہے ہیں. ناظرین سے ہم اس امید کے ساتھ اجازت لیں گے کہ انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے ایک عنوان کے ساتھ, خاص کر جنگ بدر پر کل جو ہے بات ہوگی. 17 رمضان مبارک چونکہ جنگ بدر کا سے تعلق ہے. ہم انشاءاللہ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم. روز نمازی اور قرآن ہے.